And pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Governmental Guru. Let's compete. Today, I will discuss a very important topic. It is POCSO Act, Prevention of Children from Sexual Offences Act. It is 2026. It is updated one. In this part, I will discuss. It is section 1 to 6. It is part 1. In this part also, you can get 20 MCQs. The session definitely would be interesting one, and you listen the video till the end. You can get complete information, and very lucidly and concisely. I will discuss each and every section, and also MCQs according to the latest pattern. Also, I bring MCQs. So my friends, do not forget to subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification, and your friends also they can get notification and they can get benefit. So you see my channel name, Asit Governmental Guru. Let's compete. So subscribe, like, and share my channel so that you can get notification for my upcoming videos. Uh, Join my WhatsApp number. It is 8327782034. If any query is there, you can contact with me and clear your doubt. So now I am going to discuss. It is POCSO Act. Uh, it is part one. First one, you see the definition. It is related to the international mandate. By referencing the UN Convention on the Rights of the Child, as a state party signatory to this convention, India is internationally obliged to protect children. So, three specific points define what the government must prevent. So, ये जो UN Convention on the Rights of the Child, इसमें थ्री स्पेसिफिक पॉइंट्स को एम्फासाइज किया गया है. So each and every time government initiates some steps to prevent all these things. It means to create safe and a secure environment for the children. So for in this case, you see the three important it means specific points emphasized by UN Convention. One is the coercion. Coercion means इसमें फोर्स नहीं करना है, तो चिल्ड्रन को फोर्स नहीं करना है कोई इलीगल सेक्सुअल एक्ट्स में. स्टॉपिंग पीपल फ्रॉम फोर्सिंग और ट्रिकिंग चिल्ड्रन इनटू इलीगल सेक्सुअल एक्ट्स. ठीक है, तो फोर्स करना है मीन्स एक्चुअली इसमें इट मीन्स ये एक सीरियस ऑफेंस है. सेकेंड वन, प्रोस्टिट्यूशन, प्रिवेंटिंग द कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रन. ओके, सो इसको भी प्रिवेंट करना है गवर्नमेंट को. ईच एंड एवरी टाइम द गवर्नमेंट शुड टेक प्रॉपर स्टेप्स टू प्रिवेंट prostitution, basically preventing the commercial sexual exploitation of the children. Third one is the pornography, stopping the use of children in the creation or performance of explicit materials. So ये तीन स्पेसिफिक पॉइंट्स को एम्फासाइज किया गया है यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड. कोयर्सन, फोर्स नहीं करना है children ko. Might means any person should not force the children to involve in any sexual act. Prostitution, commercially the children should not be involved in any type of sexual exploitation. Another one, pornography, children को यूज करके कुछ ऐसे एक्सप्लिसिट मटेरियल्स क्रिएट करना और उसको परफॉर्म करना. तो ये तीनों केस एक्चुअली गवर्नमेंट शुड टेक प्रॉपर स्टेप्स एक्चुअली टू प्रिवेंट ऑल दीज थिंग्स. सो यू सी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. सिंस इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक इन 1950, द 63rd ईयर मार्क्स 2012. तो जो ये जो पोक्सो एक्ट एक्चुअली आया था 2012 में, तो ये 63rd ईयर ऑफ एक्चुअली इंडिपेंडेंस है, विच इज व्हेन दिस एक्ट वाज पास्ड. 2012 में पास हुआ था. तो जो 63rd ईयर जो है, 63rd ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में ये एक्ट आया था 2012. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. नेक्स्ट देखिए, सेक्शन हम अभी डिस्कस करेंगे. सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल,
एंड यू सी सेक्शन 1 में सब टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, एंड सेक्शन 2 में डेफिनेशंस देखेंगे जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है. तो फर्स्ट वन सेक्शन 1 short title, rule position is important one. Always try to remember the rule position. Section 1 related to short title, extent and commencement. So short title, first one is the name. This gives the law its official name. It is commonly referred to by the acronym POCSO, Prevention of Children from Sexual Offences. The year 2012 is part of the title because that is when the parliament passed the bill. So जो पार्लियामेंट जो बिल को पास किया था वो 2012 में. ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ देखना नहीं है. और नेक्स्ट जो है एक्सटेंड द ज्योग्राफी, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया नाउअडेज. ओके, ऑल द स्टेट्स एंड ऑल यूनियन टेरिटरीज. द पोक्सो एक्ट नाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड. ओके, कंफ्यूजन नहीं होना है. सो ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. कमेंसमेंट, द स्टार्टिंग डेट बोल रहा है. द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड नवंबर 14, 2012. ईयर तो याद है 2012, पोक्सो एक्ट 2012, बट नवंबर 14 जो चिल्ड्रंस डे है 2012 का, उसी डेट में पोक्सो एक्ट एक्चुअली ऑफिशियली केम इनटू फोर्स. इसको याद रखना है, ये डेट के ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है. तो 2000 वी नो दैट पोक्सो एक्ट 2012 actually it was passed in the parliament, but when it came into force, it is important one. So it is November 14, 2012. Okay. नेक्स्ट वन कुछ डेफिनेशन हम देखेंगे सेक्शन 2 में. जो चाइल्ड का डेफिनेशन पूछता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. तो बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, चाइल्ड मीन्स यहां पर बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, इसको याद रखना है. ये सेक्शन 2D है. ओके, 2 सबसेक्शन डी में चाइल्ड को डिफाइन किया गया है. ये जो पोक्सो एक्ट 2012 का सेक्शन 2 तो डेफिनेशंस के ऊपर है, उसका सेक्शन सबसेक्शन डी को आप देखिए. इसमें और एक ऐड कर दिया सेक्शन 2 सबसेक्शन डी ए में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को एक्सप्लेन किया है कि हाउ टू डिफाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी. ओके, हम किस तरीके से उसको डिफाइन करेंगे. फर्स्ट वन, फोटोग्राफ वीडियो के ऊपर एम्फसाइज किया गया है. दिस रिफर्स टू द एक्चुअल और रियल वर्ल्ड कैप्चर ऑफ ए चाइल्ड. इट कवर्स एनी फिजिकल और डिजिटल रिकॉर्डिंग ऑफ ए रियल माइनर एंगेज्ड इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट. तो जितना भी फोटोग्राफ्स आता है, फोटोग्राफ और जो वीडियो है, तो वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आएगा. सपोज अभी जो डिजिटल रिकॉर्डिंग होता है कि कुछ एनी फिजिकल और डिजिटल रिकॉर्डिंग ऑफ ए रियल माइनर engaged in sexually explicit conduct. Next one, digital or computer generated image indistinguishable from an actual child. Actual अभी AI में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो सकता है, तो वो पूरा एक्यूरेट आ जाएगा, तो ये भी पोर्नोग्राफी में जाएगा. कोई ऐसा चाइल्ड, इट मीन्स नोइंगली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई चाइल्ड का जो एक्सप्लिसिट एक्ट, कोई चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन को शो करना, वो भी पोर्नोग्राफी में आता है. नेक्स्ट वन, इमेज क्रिएटेड, इमेज क्रिएट करना, अडॉप्टेड और मॉडिफाइड, कोई भी इमेज को उसको क्रिएट करना, उसको अडॉप्ट करना, मॉडिफाई करना, वो भी पोर्नोग्राफी में आता है. नेक्स्ट वन, द अपीयरेंस स्टैंडर्ड, अपीयर टू डिपिक्ट ए चाइल्ड. इसको ऐसे अपीयर करना कि ये एक चाइल्ड जैसे लेस देन 18 ईयर, तो उसको डिपिक्ट करना चाइल्ड के आकार में. ये सब चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आएगा. बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी जो एआई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एआई जनरेटेड इमेज बहुत डेंजरस है. ठीक है, तो ये सब चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आ जाता है. तो इस तरीका का ऑफेंस में एक्चुअली जो पनिशमेंट होता है वो रिगोरस होता है. जो पनिशमेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग वन, पनिशमेंट इज रिगोरस वन. तो ये डेफिनेशन को आपको याद रखना है. तो ये जो इट मींस रूल पोजीशन बताया 2, उसका सबसेक्शन बोल रहा है DA. राइट, नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे. डोमेस्टिक रिलेशनशिप में 2E में है, shall have the same meaning as of the protection of women from domestic violence act. इसको भी याद रखना है. जैसे एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में हम वुमेन को प्रोटेक्शन देंगे होम में, वैसा ही तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में बेसिकली घर में, इन होम ऑल्सो, इट मीन्स द चाइल्ड मस्ट गेट प्रॉपर प्रोटेक्शन. ओके, सो दैट
the child should not be exploited by any relative or any member of the family. ठीक है, तो सेम थिंग है, जैसे हम वोमेन को प्रोटेक्शन देते हैं, इसके लिए एक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, तो वैसे ही, ठीक है। तो ये जो है आप एक्ट नंबर 43 ऑफ 2005, ये जो एक्ट का इसमें क्लियरली मेंशन किया है कि 43 उसका जो सब सेक्शन में क्लियरली मेंशन किया गया है, तो वैसा ही सेम डेफिनेशन होगा चाइल्ड के लिए। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन shall have the same meaning as assigned to it in the Religious Institutions Prevention of Misuse Act 1988। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट जो है 1988, तो उसको इसी एक्ट के हिसाब से रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को डिफाइन किया गया है। ठीक है, और कुछ अच्छा जो 2 सबसेक्शन 2 में जो इंडियन पेनल कोड है, आईपीसी है, आईपीसी 1860 इंडियन पेनल कोड, अभी तो चेंज हो चुका है 2023 में, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो 2023 में उसको चेंज किया गया है नेम हिंदी में। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू 2023 लॉज, दिस शुड रिफर टू द भारतीय न्याय संहिता। सिमिलरली कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीज्योर सीआरपीसी 1973, ये ईयर को याद रखना है, जो इंडियन पेनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीज्योर 1973, इसका भी नाम चेंज हो चुका है सीआरपीसी का, इट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस। ठीक है, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, ईयर को याद रखना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, तो इसको इस एक्ट को डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे आपको इंडियन पेनल कोड है, सपोज कोर्ट में केस जाता है इस पोक्सो रिलेटेड एक्ट कि एक क्रिमिनल सपोज एग्रावेटेड इट मीन सेक्सुअल ऑफेंस होता है, तो वो सीआरपीसी में जाएगा। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, ठीक है, 2015, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, कोई ऐसे हम इमेज क्रिएट करना, मॉडिफाई करना, कि कोई जैसे चाइल्ड जैसा एक इमेज क्रिएट करना, उसको डिपिक्ट करना। ठीक है, तो जो एआई जनरेटेड इमेज, जैसे जब कोई भी डिफरेंट नहीं होगा चाइल्ड से, वो इट मीन्स फैब्रिकेटेड मैनर, इट इज नॉट रियल, बट एक्चुअली उस तरीका का इमेज को क्रिएट करना, ये सब आईटी एक्ट को वायलेट करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, तो ये सब एक्ट के ऊपर दे दिया। ये एक्ट को ऑल द एक्ट्स एक्चुअली ट्राई टू रिमेंबर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चैप्टर 2 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। इसमें 2 चीज आएगा, एक है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड अनदर वन पनिशमेंट देयर फॉर। ठीक है, इसमें हम देखेंगे सेक्सुअल इसी रिलेटेड में चैप्टर 2 में। ठीक है, तो चैप्टर 2 में जो आएगा सेक्शन 3 टू सेक्शन 6 आएगा, ओके, सेक्सुअल असॉल्ट के ऊपर और क्या पनिशमेंट होगा। ठीक है, तो उसी रिलेटेड में सेक्शन 3 देखिए, इट इज सेक्शन 3 पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ये सेक्शन को ओनली आप याद रखिए, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, और इसमें जो पॉइंट है इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सेक्शन 3, इसमें जो आपको जो पनिशमेंट आएगा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में, उसी पनिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 4 है, सेक्शन 3 में ओनली पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को डिफाइन किया गया है। ठीक है, और सेक्शन 4 में जो पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो उसमें पनिशमेंट क्या है, जनरल पनिशमेंट सेक्शन 4(1), जो पोक्सो एक्ट का सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में, यदि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो मिनिमम पनिशमेंट 10 इयर्स, मिनिमम पनिशमेंट 10 इयर्स इंप्रिजनमेंट, मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट, याद रखियो। ठीक है, ऑल्सो फाइन इज कंपल्सरी। तो इसमें तो जनरल में यदि एनी पर्सन एक्चुअली इन्वॉल्व इन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो इसमें क्या है, मिनिमम जो पनिशमेंट होगा 10 इयर्स होगा, मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट होगा, मिनिमम 10 इयर्स इंप्रिजनमेंट, ऑल्सो फाइन इज कंपल्सरी। मगर यहां पर एक दे दिया, तो हम तो चाइल्ड को डिफाइन किया है पोक्सो एक्ट में लेस देन 18 इयर्स, मगर यहां पर जो है थोड़ा रिगोरस पनिशमेंट है, इफ द चाइल्ड इज बिलो 16 इयर्स, सेक्शन 4(2) ये बोला है, पनिशमेंट इज मोर सिवियर if any penetrative sexual assault actually it means tried by any person over the child, तो ये पनिशमेंट सिवियर है if the child is below 16 years। इसमें क्या है, मिनिमम 20 years imprisonment और मैक्सिमम लाइफ imprisonment till natural life, लाइफ imprisonment till natural life,
ऑल्सो फाइन इज कंपल्सरी। सो इसको याद रखना है। तो इसमें लेस देन 16 ईयर्स पनिशमेंट रिगोरस है। ओके, यदि कोई, इट मीन्स द पर्सन एक्चुअली involved in penetrative sexual assault and the child is less than 16 years, minimum punishment, minimum 20 years imprisonment, maximum life imprisonment, but natural life, till natural life, also fine is compulsory। ठीक है, ये सेक्शन 4(2) बोल रहा है। और फाइन में सेक्शन 4(3) फाइन को डिफाइन किया है। ठीक है, सेक्शन 4(3) में फाइन में देख लीजिए, मस्ट बी जस्ट एंड रीजनेबल, शुड बी गिवन टू द विक्टिम, यूज्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। तो जो फाइन है एक रीजनेबल फाइन इंपोज होगा कल्प्रिट के ऊपर, और द फाइन शुड बी गिवन टू द विक्टिम एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। सो इसमें जो सेक्शन 4 पनिशमेंट रिलेटेड है, एक जनरल है। जनरल मीन्स लेस देन 18 ईयर्स, जनरल मीन्स लेस देन 18 ईयर्स। तो उसमें और एक बार देखिए, जनरल में आपको कंफ्यूजन, ये जो जनरल पनिशमेंट है इसमें लेस देन 18 ईयर्स, और इट मीन्स मिनिमम पनिशमेंट 10 ईयर्स, मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट, फाइन इज कंपल्सरी। मगर जो सेक्शन 4(2) है, इसमें जो सेक्शन 4(2) है, इट इज लेस देन 16 ईयर्स, और रिगोरस पनिशमेंट एक्चुअली इज देयर 20 ईयर्स इंप्रिजनमेंट। मगर यहां पर मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट, वहां पर भी जनरल में लाइफ इंप्रिजनमेंट है, मगर टिल नेचुरल लाइफ। ठीक है, क्योंकि लाइफ इंप्रिजनमेंट क्या है, जैसे आपको एक जस्ट इट मींस बिफोर, जब ओल्ड एज हो जाता है तो आपको रिलीज कर दिया जाता है, मगर यहां पर वो नहीं होगा, टिल नेचुरल लाइफ। ऑल्सो फाइन इज कंपल्सरी, तो ये थोड़ा रिगोरस है। ठीक है, और फाइन बेसिकली रीजनेबल होता है एंड शुड बी गिवन टू द विक्टिम, यूज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, चलो सेक्शन 5 में, इसमें आप पहले जो सेक्शन 3 था वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट था। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट सेक्शन 4, उस यदि कोई पर्सन इन्वॉल्व होता है तो उसके ऊपर जो पनिशमेंट था। मगर ये जो अग्रावेटेड आ गया सेक्शन 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्रावेटेड में आपको याद रखिए, सपोज सम अथॉरिटीज एक्चुअली दे शुड हैव प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द चिल्ड्रन, ये कि नहीं। यदि अथॉरिटीज इन्वॉल्व होते हैं, कोई ट्रस्ट इन्वॉल्व होता है, जो एक्चुअली देयर ड्यूटीज, द ड्यूटी ऑफ द अथॉरिटीज to provide protection, to create safe environment, but if they involve in actually it means sexual assault, then यहां पर aggravated हो जाता है। वही है, this section defines serious and more severe forms of penetrative sexual assault on a child. It becomes aggravated when certain conditions or circumstances make the offense worse। तो यहां पर दे दिया, जो aggravated लग रहा है, जो aggravated penetrative sexual assault में क्या था, aggravated का मतलब क्या है, by persons, एक एक को याद रखिए, बाय पर्सन्स इन अथॉरिटी और ट्रस्ट। यदि कोई जो अथॉरिटी है, ट्रस्ट है, उनका काम है चाइल्ड को प्रोटेक्शन देना, चाइल्ड के लिए सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना। ठीक है, तो एवरी ईच एंड एवरी टाइम इनिशिएट सम मेजर्स टू प्रिवेंट एक्चुअली सेक्सुअल असल्ट। मगर यदि वो इन्वॉल्व होते हैं तो वो अग्रावेटेड हो जाता है। तो वही पुलिस ऑफिसर, आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस की पब्लिक सर्वेंट, यदि ये इन्वॉल्व हो जाते हैं सेक्सुअल असल्ट में, इफ दे इन्वॉल्व इन सेक्सुअल असल्ट, तो आपका किसको बोलेंगे, क्योंकि इनका काम है प्रोटेक्शन देना चिल्ड्रन को, मगर ये इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल असल्ट में तो वो अग्रावेटेड हो जाता है। ठीक है, तो वही है अग्रावेटेड। तो ये तो रहता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट, तो इसमें अग्रावेटेड, अग्रावेटेड मीन्स कुछ जो अथॉरिटीज, फर्स्ट पॉइंट में जो अथॉरिटीज और ट्रस्ट है, if they involve in actually penetrative sexual assault, then the condition is aggravated one। next देखिए, बहुत कुछ पॉइंट है। सेकेंड है यहां पर देखिए, सेकेंड, जेल और होम स्टाफ, रिमांड होम, प्रोटेक्शन होम होता है। तो जेल और होम स्टाफ जो होता है, रिमांड होम है कि प्रोटेक्शन होम है, और वहां पर यदि अथॉरिटीज एक्चुअली इन्वॉल्व होते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट में, तो वो अग्रावेटेड हो जाता है। हॉस्पिटल स्टाफ यदि इन्वॉल्व हो जाते हैं, ओके, दे शुड प्रोवाइड प्रोटेक्शन, बिकॉज सपोज द चिल्ड्रन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल स्टाफ इज इन्वॉल्व इन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट, तो वो अग्रावेटेड हो जाता है। स्कूल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन स्टाफ, दे मस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, दे मस्ट क्रिएट सेफ एनवायरनमेंट, है कि नहीं। वो स्कूल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वो सेफ पैसेज देना है चिल्ड्रन को, मगर यदि उनका स्टाफ इन्वॉल्व हो जाते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट में, तो वो अग्रावेटेड हो जाता है, बिकॉज दे मिसयूज देयर पावर और पोजीशन।
ठीक है। तो यहां पर जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें यह था कि जो अथॉरिटी और जो ट्रस्ट है, यदि वो इन्वॉल्व हो जाते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट में, तो वो अग्रावेटेड हो जाता है, क्योंकि अथॉरिटीज और ट्रस्ट एक्चुअली दे मस्ट क्रिएट सेफ एनवायरमेंट, they must provide a protective environment, but when they involve in penetrative sexual assault, तब वो aggravate हो जाता है. सेकेंड पॉइंट, वही aggravated penetrative sexual assault में by persons responsible for child care और relation, जो लोग हैं वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है चाइल्ड को केयर करना और उनके साथ एक अच्छा रिलेशन क्रिएट करना, ठीक है। और यदि वो इन्वॉल्व हो जाते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट में, जैसे रिलेटिव है, गार्डियन है, फोस्टर पेरेंट है, और पर्सन लिविंग इन द सेम हाउस होल्ड, पर्सन इन पोजिशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी बिकॉज दे बिट्रे ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ लोगों का चाइल्ड को सेफ एनवायरमेंट देना। खुद का घर में कुछ सपोज कुछ रिलेटिव है, कुछ गार्डियन है, कुछ फोस्टर पेरेंट है, और कुछ सम पर्सन्स लिविंग इन द हाउस होल्ड की पर्सन इन पोजिशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी, इफ दे इन्वॉल्व इन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट, देन वो अग्रावेटेड हो जाता है। थर्ड पॉइंट है इन इंस्टीट्यूशनल और कस्टोडियल सेटिंग्स लाइक जेल, रिमांड होम, शेल्टर होम, हॉस्पिटल, एजुकेशनल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वेयर द चाइल्ड इज सपोज टू बी सेफ। तो ये सब प्लेस चाइल्ड के लिए सेफ होता है, और उन्हीं इसी में एक्चुअली द स्टाफ्स इन्वॉल्व इन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट, तो वो अग्रावेटेड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, when the act is especially violent or harmful, जैसे यूज ऑफ वेपन्स, फायर, एसिड एटसेट्रा। तो जैसे कुछ वेपन्स यूज करके सपोज सेक्सुअल असल्ट करना, कि सपोज इट मीन्स फायर, एसिड एटसेट्रा, ये सब जब आ जाता है, जो ये इस तरीके का वायलेंट और हार्मफुल मेजर्स जब इनिशिएट होता है, तो वो अग्रावेटेड हो जाता है। कॉजेस ग्रेवस इंजुरी और डैमेज टू सेक्सुअल ऑर्गन्स, कॉज मेंटल इलनेस, disability or incapacity, infect children with HIV or life threatening disease, and then causes death। तो ये सब ये aggravated है, ये aggravated penetrative sexual assault है, aggravated लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके का जो violent और harmful होता है तो वो भी आ जाता है, ठीक है, aggravated penetrative sexual assault। नेक्स्ट वन, serious consequences to the child, child becomes pregnant, कि physical और mental incapacity और death of the child, ये सब aggravated है, ओके। तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट है, आप ऐड कर दीजिए अग्रावेटेड इस कंडीशन में। सिक्स में, रिपीटेड और एक्सट्रीम सिचुएशंस, असल्ट कमिटेड मोर देन वंस, चाइल्ड बिलो 12 years, गैंग असल्ट, मल्टीपल ऑफेंडर्स, अटेम्प्ट टू मर्डर द चाइल्ड, प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर, तो ये सब यदि एक्सट्रीम सिचुएशन, जो रिपीटेड और एक्सट्रीम सिचुएशंस, वो भी अग्रावेटेड में आ जाता है, ठीक है। Similarly, special vulnerable situations, suppose child with mental or physical disability, child already pregnant, कि during communal violence और natural disaster, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, कोई communal violence है, natural disaster है, और उसको एक सेफ पैसेज होम में चाइल्ड है, और वही होम का जो स्टाफ है वो एक्चुअली दे इन्वॉल्व इन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट, कि ऑलरेडी चाइल्ड प्रेग्नेंट है और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट, कि द चाइल्ड जो डिसेबल है, इट मीन्स मेंटल सपोज डिसेबल है, कि फिजिकल डिसेबल है वो चाइल्ड, हैंडीकैप्ड चाइल्ड है, और उसके ऊपर सेक्सुअल असल्ट, तो ये सब अग्रावेटेड हो जाता है। नेक्स्ट वन, ये भी आ जाएगा, ह्यूमिलिएटिंग एक्ट्स, मेकिंग द चाइल्ड स्ट्रिप और पैरेड नेक्ड इन द पब्लिक, तो ये सभी चीज आ जाता है अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट, ठीक है। तो इसको याद रखना है। तो ये सेक्शन 5 है, ठीक है, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट। उसमें हम सेक्शन 6 में जाएंगे। सेक्शन 6 में पनिशमेंट के ऊपर जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पनिशमेंट फॉर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट। यदि एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट में इन्वॉल्व होता है कोई पर्सन, तो उसको पनिशमेंट क्या है? मिनिमम पनिशमेंट 20 years ऑफ रिगोरस इंप्रिजनमेंट, मिनिमम 20 years इंप्रिजनमेंट, मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द पर्सन्स नेचुरल लाइफ, और डेथ पेनल्टी भी है, लाइफ इंप्रिजनमेंट टिल नेचुरल लाइफ और डेथ पेनल्टी इस केस में यदि अग्रावेटेड होता है, ठीक है, अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट, ठीक है। और इस केस में फाइन भी है, द ऑफेंडर मस्ट ऑल्सो पे फाइन, एंड द फाइन शुड बी फेयर एंड रीजनेबल,
द फाइन फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए, एंड इट मस्ट बी गिवन टू द विक्टिम फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। इट इज गिवन टू द विक्टिम फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये चीज आ जाता है। तो इसमें मैं एक टेबल बना दिया, पनिशमेंट फॉर असल्ट देख लीजिए। जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट है, जो सेक्शन 4, जो सेक्शन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में, और पनिशमेंट जो है सेक्शन 4 में। तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट में मिनिमम पनिशमेंट 10 इयर्स, मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट। मगर इसमें आप आड़ मत कीजिए कि टिल नेचुरल लाइफ, इसमें आड़ नहीं होगा। टिल नेचुरल लाइफ इसमें आड़ नहीं होगा। अच्छा, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट डिफाइन किया गया है सेक्शन 5 में। अभी बताया, बहुत कुछ कंडीशंस बताया। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट है, मगर एग्रावेटेड कब लगेगा? और सेक्शन 6 जो है वो पनिशमेंट है। दोज पर्सन्स एक्चुअली इन्वॉल्वड इन एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट, मिनिमम पनिशमेंट 20 ईयर्स है, मैक्सिमम लाइफ है, लाइफ इंप्रिजनमेंट, नेचुरल लाइफ और डेथ भी है। ठीक है, और जो लेस देन 16 ईयर्स, यहां पर देखिए ऑन चाइल्ड सेक्सुअल असल्ट, ऐसे मीन सेक्सुअल असल्ट ऑन चाइल्ड बिलो 16 ईयर्स, जो सेक्शन 4(2) है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मिनिमम पनिशमेंट यहां पर लेस देन 16 ईयर्स। ठीक है, मिनिमम पनिशमेंट 20 ईयर्स और लाइफ इंप्रिजनमेंट, नेचुरल लाइफ। ओके, इस केस में डेथ सेंटेंस नहीं है, ओनली एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट में डेथ सेंटेंस है। तो इस टेबल को अच्छे से याद रखिए, इसी रिलेटेड में क्वेश्चन आता है। और सेक्शंस जो रूल पोजीशन है आप उसको भी याद रखिए। ठीक है, चलो अभी 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसी रिलेटेड में। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डेफिनेशंस अंडर द पोक्सो एक्ट 2012। ए चाइल्ड इज डिफाइंड एज एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स। नहीं, चाइल्ड को डिफाइन किया गया है, गलत है, क्योंकि इसमें बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स डिफाइन किया गया है, ये गलत है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी इंक्लूड्स डिजिटल और कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस दैट आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम एन एक्चुअल चाइल्ड, ये करेक्ट है। द एक्ट करेंटली एक्सक्लूड्स द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम इट्स एक्सटेंट, ये नहीं है, क्योंकि अभी जो एक्ट है एवरीवेयर इट इज इंप्लीमेंटेड, ऑल स्टेट्स एंड ऑल यूनियन टेरिटोरीज। ऐसा नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं है, अभी नाउ इट इज इट मींस इंप्लीमेंटेड इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है करेक्ट क्वेश्चन, आप करेक्ट स्टेटमेंट डिटेक्ट करना है, तो 2 ओनली, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्वेश्चन नंबर 2, अंडर द एक्ट ए चाइल्ड इज डिफाइंड एज ए पर्सन बिलो 18 ईयर्स। बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो जो चाइल्ड को डिफाइन किया गया है यहां पर बिलो 18 ईयर्स, तो मैं बताया था चाइल्ड को डिफाइन किया गया था एक्चुअली, उसका सेक्शन देखिए रूल 2 तो डेफिनेशन से, उसका सबसेक्शन डी देखिए। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, with reference to the penetrative sexual assault and its punishment under POCSO Act, which of the following statements is incorrect? हम देखेंगे, तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट है, डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में और पनिशमेंट है सेक्शन 4 में। तो यहां पर देखेंगे इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अप्लाइंग वंस माउथ टू द यूरेथ्रा ऑफ ए चाइल्ड टू कंस्टिट्यूट्स पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट, ये करेक्ट है। The minimum punishment for penetrative sexual assault is 7 years. No, it is 10 years actually. ये है actually 10 years minimum sentence. Okay. और maximum life imprisonment. If the victim is below 16 years of age, ठीक है, the punishment can extend to imprisonment for the remainder of the person's natural life. The punishment can extend, yes, it is correct one. तो आप देखिए below 16 years, जो आप सेक्शन, ये देखिए सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 में, यदि चाइल्ड लेस देन 16 ईयर्स है एंड सपोज द चाइल्ड एक्सप्लॉइटेड इट मींस बाय एनी पर्सन रिलेटेड टू पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट, इस केस में मिनिमम इंप्रिजनमेंट 20 ईयर्स है, मगर मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट टिल नेचुरल लाइफ, यही है ना, तो वही दिया है। ठीक है, द पनिशमेंट कैन एक्सटेंड टू इंप्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ। तो उसमें देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन बोला है चूज करने के लिए, तो 1 और 3 इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है सिलेक्ट। अच्छा, इनकरेक्ट हम स्टेटमेंट डिटेक्ट करेंगे, सर इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है ओनली स्टेटमेंट 2, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4, द पोक्सो एक्ट केम इन टू फोर्स ऑन 14 नवंबर 2012। तो पास हुआ, पार्लियामेंट में पास हुआ, मतलब ऑफिशियली केम इन टू फोर्स ऑन 14 नवंबर 2012, और वो 63rd, इसको भी याद रखना है, 63rd ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, क्लियर, इसको भी याद रखना है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, मिनिमम पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट, तो मिनिमम पनिशमेंट इज 10 years, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, मिनिमम पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट ऑन ए चाइल्ड बिलो 16 years, यहां पर दिया है बिलो 16 years, मिनिमम पनिशमेंट इज 20 years, एंड मैक्सिमम पनिशमेंट में बोला था, मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट, ठीक है, लाइफ इंप्रिजनमेंट टिल नेचुरल लाइफ, इसमें याद रखना है, टिल नेचुरल लाइफ। मगर इसमें एक चीज याद रखना है, जो ओनली पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट होता है लेस देन 18 years, तो उस केस में लाइफ इंप्रिजनमेंट ओनली, उसमें मेंशन नहीं है टिल नेचुरल लाइफ। मगर लेस देन 16 years, it means minimum punishment 20 years, minimum imprisonment 20 years, and it can be extended to life imprisonment till natural life। तो यहां पर जो है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, aggravated penetrative sexual assault includes when committed by, तो मैं बताया था aggravated penetrative sexual assault जो होता है बेसिकली स्ट्रेंजर ओनली, पुलिस ऑफिसर और पर्सन इन अथॉरिटी, फ्रेंड ओनली, नेबर ओनली। इसमें ऑप्शन बी पुलिस ऑफिसर और पर्सन इन अथॉरिटी, और अदर जगह में ओनली लगा है, ओनली लगा है, ये नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पुलिस ऑफिसर और पर्सन इन अथॉरिटी, ठीक है, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इंक्लूड्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, मिनिमम पनिशमेंट फॉर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो आप देखिए जो सेक्शन 6 बोल रहा है, मिनिमम पनिशमेंट है 20 years, और मैक्सिमम लाइफ, मैक्सिमम आपको याद रखना है, मैक्सिमम वही है लाइफ इंप्रिजनमेंट, और डेथ सेंटेंस में है लाइफ इंप्रिजनमेंट टिल नेचुरल लाइफ, इसको याद रखना है, टिल नेचुरल लाइफ, और इसमें डेथ सेंटेंस भी है, डेथ सेंटेंस भी है, ठीक है, मगर यहां पर मिनिमम पनिशमेंट पूछा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, अभी मैं बताया था ऑप्शन सी डेथ पेनल्टी और लाइफ इंप्रिजनमेंट, इसमें सपोज टिल नेचुरल लाइफ, टिल नेचुरल लाइफ, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सेक्शन 6 इसको डिफाइन किया है, जो पनिशमेंट रिलेटेड टू द एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 10, फाइन इम्पोज्ड अंडर द एक्ट शुड बी पेड टू गवर्नमेंट ओनली, आर्बिट्ररी, जस्ट, रीजनेबल एंड गिवन टू विक्टिम, ऑप्शनल। जो फाइन इम्पोज होता है, जो ऑफेंडर के ऊपर, जो कल्प्रिट के ऊपर, वो जस्ट, रीजनेबल होता है एंड गिवन टू विक्टिम फॉर इट मींस मेडिकल केयर एंड रिहेबिलिटेशन, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, यहां पर करेक्ट आंसर हम देखेंगे अंडर द, ठीक है, which of the following circumstances classifies an offense as aggravated penetrative sexual assault, तो आप देखिए सेक्शन 5 को देखिए, इसमें एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को डिफाइन किया गया है, मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। अच्छा, द ऑफेंस इज कमिटेड बाय ए पर्सन इन ए पोजीशन ऑफ ट्रस्ट और अथॉरिटी ओवर द चाइल्ड, ठीक है। द ऑफेंस इज कमिटेड ड्यूरिंग ए नेचुरल कैलामिटी, यस, नेचुरल कैलामिटी, नेचुरल डिजास्टर टाइम में, सपोज एक सेफ पैसेज होम में चाइल्ड है, और वही सेफ पैसेज होम का कोई स्टाफ सपोज इन्वॉल्व होता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में, वो एग्रावेटेड हो जाता है, ठीक है। द ऑफेंस रिजल्ट्स इन द प्रेगनेंसी ऑफ ए फीमेल चाइल्ड, ओके, फीमेल चाइल्ड प्रेग्नेंट है और फिर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ओके, सपोज द चाइल्ड इज एक्सप्लॉइटेड, ओके, बाय सेक्सुअल असॉल्ट, तो वो एग्रावेटेड हो जाता है, ये भी करेक्ट है। द ऑफेंस इज कमिटेड बाय रिलेटिव ऑफ द चाइल्ड थ्रू अडॉप्शन और मैरिज, ठीक है, ये भी करेक्ट है। तो यहां पर चारों करेक्ट है, ये चारों आ जाएगा एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
Question number 12. Consider the following statements regarding punishment for aggravated penetrative sexual assault under POCSO Act. Punishment related मैं बताया था सेक्शन 6 जो है वो इट इज रिलेटेड टू द पनिशमेंट फॉर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट. अच्छा, द मिनिमम टर्म फॉर रिगोरस इम्प्रिजनमेंट इज 20 years. ठीक है, मिनिमम पनिशमेंट इज 20 years, मिनिमम इम्प्रिजनमेंट. द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द डेथ पेनल्टी एज ए पॉसिबल पनिशमेंट फॉर दिस ऑफेंस. ठीक है, ये भी ठीक है. एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट में डेथ सेंटेंस भी है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है टिल नेचुरल लाइफ. एनी फाइन इम्पोज्ड मस्ट बी पेड टू द स्टेट ट्रेजरी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट. ये नहीं है, जो भी फाइन जो ऑफेंडर है, जो कल्प्रिट है, जो पेड करेगा वो विक्टिम को पेड किया जाएगा और विक्टिम उसको यूज करेगा. चाइल्ड जो विक्टिम चाइल्ड है वो यूज करेगा उसका मेडिकल केयर एंड रिहेबिलिटेशन. तो ये थर्ड वन गलत है, तो उसमें करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछा है तो 1 and 2. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. अंडर द एक्सप्लेनेशन to section 5G regarding gang penetrative sexual assault under the POCSO Act, which legal principle is applied? जो गैंग सेक्सुअल असल्ट है, गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट अंडर द पोक्सो एक्ट जो सेक्शन 5 सब सेक्शन जी उसको एक्सप्लेन किया है, तो क्या लीगल प्रिंसिपल इज अप्लाइड? द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन इंटेंशन वेयर ईच पर्सन इज लायबल as if the act were done by him alone, the principle of it means vicarious liability specifically for the head of the household, the principle of juvenile justice which reduces the term for younger offenders in the group. मगर इसमें जो डिफाइन किया गया है जो गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट वो ऑप्शन बी है, क्योंकि जो गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट होता है तो उनका कॉमन इंटेंशन एक होता है, ईच एंड एवरी पर्सन का इंटेंशन रहता है, कॉमन इंटेंशन where each person is liable as if the act were done by him alone. ठीक है, तो वही सेम है जो कॉमन, यही है लीगल प्रिंसिपल. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार आया है इस रिलेटेड में. क्वेश्चन नंबर 14. अच्छा, रिपीटेड सेक्सुअल असल्ट ये भी एग्रावेटेड है ऑन ए चाइल्ड फॉल्स अंडर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट, रिपीटेड सेक्सुअल असल्ट. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. ए पर्सन commits aggravated offense if the act results in death of the child. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. aggravated हो जाता है जब चाइल्ड का डेथ हो जाता है. अब देखिए aggravated penetrative sexual offense में क्लियरली मेंशन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16. which of the following conditions constitutes aggravated penetrative sexual assault under section 5? अच्छा, the offense is committed by a police officer within the limits of the police station. ठीक है, the offense is committed by a person in a position of trust or authority. ठीक है, the offense causes the child to become pregnant. ठीक है, all of the above. यहां पर जो आंसर होगा सभी आ जाएगा aggravated penetrative sexual assault में. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17. which specific article of the Constitution of India is cited in the preamble of the POCSO Act as empowering the state to make special provisions for children? तो आप यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कोई कौन सा स्पेसिफिक आर्टिकल है जहां पर एक्चुअली स्टेट को एक्चुअली एम्पावर किया गया है कि स्पेशल प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रन, so that we can it means we can stop all these things. We can stop child pornography, we can stop child exploitation. Okay, we can stop the any type of coercion by any person. It means related to the sexual explicit act on the child. So इसमें special provisions for children, ये कौन सा एक्ट है, आर्टिकल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 15 क्लॉज 3, आर्टिकल 45, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. आर्टिकल 15 क्लॉज 3, इसमें स्पेशल प्रोविजंस है फॉर चिल्ड्रन, प्रोवाइड सेफ एनवायरनमेंट फॉर द चिल्ड्रन. Okay, so that the children's they no one tried to it means involve the children in pornography. No one tried to force the child in explicit act. Okay, no one actually tried to it means force the child in prostitution like this. So many provision. It is article 15 clause 3. Option A is the correct answer. इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आया है. क्वेश्चन नंबर 18. According to section
2 सबसेक्शन 1 डी है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का डेफिनेशन था तो उसमें क्या इंक्लूड होगा? ओनली मटेरियल्स क्रिएटेड फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, ओनली मटेरियल्स इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14, ओनली फिजिकल फोटोग्राफ्स ऑफ एन एक्चुअल चाइल्ड। यहाँ पर ओनली ओनली लगा है, बट एनी विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड इंक्लूडिंग कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, if a member of the armed forces commits penetrative sexual assault in an area where they are deployed, it is classified as। यदि कोई आर्मी पर्सन को डिप्लॉय किया गया है पर्टिकुलर एरिया में और वहां पर वो ही कमिट्स एक्चुअली पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट ऑन द चाइल्ड, तो वो ऑप्शन सी में आ जाएगा, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो लास्ट वन, under section 5 subsection 1 under the POCSO Act, aggravated penetrative sexual assault is committed if the offender is a relative, guardian or person in a domestic relationship with the child, a person living in a different city, a complete stranger to the child, a person under the age of 18। यहां पर जो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप जो 5 सबसेक्शन, ऐसे सेक्शन 5 तो है, वो तो डिफाइन किया है कि अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट, तो उसका जो सबसेक्शन एन बोल रहा है, कोई रिलेटिव, गार्डियन और पर्सन इन ए डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद द चाइल्ड, यदि उनके द्वारा चाइल्ड एक्चुअली सेक्सुअल असल्ट होता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असल्ट, वो एक्चुअली अग्रावेटेड होता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आज मैं सेक्शन 1 टू सेक्शन 6 डिस्कस किया, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, just to wait for the other parts। So definitely it means I will bring some nice videos and easily you can understand. There is no need to refer any order and book। So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel so that you can get notification for my upcoming videos। आज इतना ही है। Thank you and namaskar to all of you।